اور آج کا یہ نادان کہتا ہے کہ تم مسلمانوں نے ہمارے ہندوستان کو کیا دیا. ہم مسلمانوں نے اس ہندوستان کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا. ہم مسلمانوں نے اس ہندوستان کے لیے اپنی گردنوں کو سوئیوں پر لٹکایا. ہم مسلمانوں نے اس ہندوستان کے لیے 18 سال تک 25 سال تک کالے پانی کی سزا جھیلی. ہم مسلمانوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی ہندوستان کے لیے کالا پانی جیسے خطرناک جیل میں قید و بند کی صعوبتوں اور مشقتوں کو جھیلا ہے. حاضرین، یہ قربانیاں تھیں مسلمانوں کی جانی اور مالی قربانیاں ہندوستان کو آزاد کرانے. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. حاضرین جمعہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا. اس پر مزید احسان ہے کہ مسلم گھرانے میں ہماری پیدائش فرمائی. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، جمعہ کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار. محترم حاضرین، آج ہندوستان کی آزادی کا دن اور تاریخ ہے 15 اگست. آج کئی اسکولوں میں، مدارس میں اور مساجد میں بھی ہندوستان کی آزادی پر گفتگو ہو رہی ہے اور ہوگی انشاءاللہ. حاضرین، اس موضوع کو انتخاب کرنے کے کئی ساری وجوہات ہیں جمعہ کے لیے. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بعض مسلمان ایسے ہیں جن کو اپنی تاریخ معلوم نہیں، وہ اپنی تاریخ سے بالکل بے خبر اور ناآشنا ہیں. حاضرین یاد رکھیں، اگر ہم اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھیں گے، اپنی ہسٹری کو معلوم نہیں کریں گے، تو آنے والی نسلیں ہماری تاریخ کو بھول جائیں گی اور
جو ہم مسلمانوں کی قربانیاں ہیں ہندوستان کو آزاد کرانے میں، یہ قربانیاں غیر اپنے کھاتے میں لکھ لیں گے اور ہم مسلمانوں کو ہندوستان کا دوسرے درجے کا شہری قرار دے کر کے ہندوستان سے نکال دیں گے۔ اور افسوس یہ کہ آج یہ باتیں سچ ثابت ہو بھی رہی ہیں۔ حاضرین، ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ سے، ہسٹری سے ہم مسلمانوں کے نام کو مٹانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی اسکولوں کے سلیبس سے مسلم بادشاہوں کی معلومات کو ختم کر دیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ کر کے، تو کبھی جو ہماری تاریخی جگہیں ہیں، تاریخی مساجد ہے، ان مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، ان مساجد کو ڈھا دیا جا رہا ہے، جیسے بابری مسجد کی شہادت۔ اور کبھی جو مسلمانوں کے نام سے جو شہر ہیں، جو قریے ہیں، جو روڈز ہیں، ان کے ناموں کو بدل دیا جا رہا ہے، جیسے کہ پریاگ راج کو بدل کر کے الہ آباد کا نام بدل کر کے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا شہر یا اللہ کی فتح، اس طرح سے اس کا معنی ہوتا ہے، الہ آباد کا نام کو بدل کر کے پریاگ راج رکھا گیا۔ اسی طریقے سے اورنگ آباد، جو کہ ہمارے مسلم بادشاہ اورنگزیب کے نام پر تھا، اس اورنگ آباد کے نام کو بدل کر کے چھترپتی سامبھاجی نگر رکھا گیا۔ اور اسی طریقے سے فیض آباد کا نام بدل کر کے ایودھیا رکھ دیا گیا۔ اور اگر زیادہ دور نہ بھی جائیں تو جو اردو کے الفاظ تھے ان کو بھی جو ہے کنڑ میں تبدیل کیا جا رہا ہے، جیسے کہ گلبرگہ یہ اردو کا لفظ تھا، اس کو کلبرگی بنا کر کے کنڑ میں لکھا گیا۔ اور اسی طریقے سے بیجاپور، جو ہمارے ایک مسلم بادشاہ نے اس کا نام رکھا تھا، اس کو اردو سے بدل کر کے کنڑ میں وجے پور کا نام دیا گیا۔ تو اس طرح سے ہم مسلمانوں کی تاریخ کو کبھی اسکول کا سلیبس چینج کر کے، کبھی تاریخی جگہیں ہماری مٹا کر کے، مسمار کر کے، تو کبھی ہماری جگہوں کے ناموں کو بدل کر کے ہم مسلمانوں کے نام کو اس ہندوستان سے مٹانے کی ناپاک کوشش کی جائے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بعض غیر مسلموں کا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ مسلمان غدار ہیں، مسلمان بے وفا ہیں۔ ان خطبات کے ذریعے سے، ان بیانات کے ذریعے سے انہیں یہ سمجھایا جا سکے، انہیں یہ بتایا جا سکے کہ ہندوستان کی آزادی میں ہمارے کن کن مسلمانوں نے قربانی دی، کیسی کیسی سزاؤں کو جھیلا، کیسی کیسی صعوبتوں کو انہوں نے برداشت کیا، اور انہیں یہ بتایا جا سکے کہ اگر ہم مسلمان غدار ہوتے، اگر ہم مسلمان بے وفا ہوتے، تو شاید آج بھی یہ ملک غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہوتا۔ اگر ہماری قربانیاں نہ ہوتی اللہ کی مدد کے بعد، آج بھی اس ہندوستان کے شہری غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ یہ چند اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے جمعہ کے خطبات میں ایسے موضوعات کو انتخاب کیا جاتا ہے۔ حاضرین، وطن ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معزز بنا کر کے پیدا کیا ہے، مکرم بنا کر کے پیدا کیا ہے، اور ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ کسی کا غلام بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو پیدا نہیں کیا۔ اگر کوئی انسان اگر کسی کا بندہ ہے، کسی کا غلام ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے انسان کو معزز بنایا، مکرم بنایا، مشرف بنایا، اور آزاد ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ بلکہ پوری دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دیا، اور انسان کے ماتحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی چیزوں کو کر دیا۔ انسان کے تابع اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی چیزوں کو کر دیا۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ کسی بھی انسان کو غلامی کی زندگی پسند نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو آزاد بنا کر کے پیدا کیا۔ حاضرین، یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ایک انسان جس شہر میں پرورش پاتا ہے، جس
जिस वतन में वो बड़ा होता है, पलता है, उसकी मोहब्बत उसके दिल में रच बस जाती है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का से निकाला जा रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ नमनाक आंखों से, हसरत भरी निगाहों से मक्का को देखते हुए कहते हैं कि ऐ मक्का, अल्लाह की कसम तो दुनिया की तमाम जमीनों में सबसे बेहतर जमीन है और अल्लाह की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक तू है। अल्लाह की कसम, अगर ये मक्का वाले मुझे तेरी जमीन से ना निकालते तो मैं तेरी जमीन से कभी जिंदगी में ना निकलता। ये वतन की मोहब्बत थी नबी के दिल में। इसी तरह से जब वर्खा बिन नौफल के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, जो गारे हिरा में वाकया पेश आया था और उसको जिक्र किया, तो वर्खा बिन नौफल ने कहा कि जितने भी इंसान दुनिया में तुम्हारे जैसा पैगाम लेकर के आए, जितने भी अंबिया दुनिया में आए, उनके साथ दुश्मनी की गई और दुश्मनी करते हुए लोगों ने, काफिरों ने उनके शहरों से, उनके वतनों से उनको निकाल दिया और इसी तरह से तुम्हें भी तुम्हारे वतन से निकाल दिया जाएगा। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गमगीन लहजे में, बड़े ही नमनाक लहजे में, हसरत भरे लहजे में कहा, अवा मुखरिजीयहुम, क्या ये लोग मुझे मक्का से निकाल देंगे? क्या मुझे ये लोग मेरे ही वतन से निकाल देंगे? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अपने वतन की मोहब्बत थी। और इसी तरीके से जो मुहाजिरीन थे, उनको जो मकाम और मर्तबा इस्लाम ने दिया, जो मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके जाने वाले थे, उनको जो मकाम और मर्तबा मिला है, उसकी कई सारी वजूहात हैं। उनमें से एक अहम वजह यह भी थी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर अपने मौलूदी शहर को, अपने मादर वतन को, उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में उन्होंने कुर्बान कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उन्होंने छोड़ दिया था। इसलिए इस्लाम में इन मुहाजिरीन को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा मकाम और मर्तबा दिया। और इसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने वतन से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते थे, बल्कि अपने वतन के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम बारहा दुआ करते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन से। कैसी दुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहू मिनस समरात, कि अल्लाह तबारक व तआला, ये जो मेरा शहर है मक्का, ये जो मेरा वतन है मक्का, अल्लाह तबारक व तआला तू हमेशा इस मक्का में अमन और शांति को बरकरार रखना, पीस को अल्लाह तबारक व तआला तू इस मक्का में बरकरार रखना, और जो लोग भी यहां पर आकर के बसेंगे, अल्लाह तबारक व तआला तू उनको रोजी रोटी से नवाजना। हाज़रीन, ये वतन की मोहब्बत थी अंबिया के दिलों में, सहाबा के दिलों में, सलफ के दिलों में, और यही वतन की मोहब्बत हम मुसलमानों के सीनों में थी कि जिसकी वजह से हम मुसलमानों ने हिंदुस्तान यानी अपने वतन की आजादी के लिए जंग लड़ी। हाज़रीन, एक मुसलमान के दिल में वतन की मोहब्बत होना जरूरी है, और वतन की मोहब्बत होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ वतन की मोहब्बत को लोगों के सामने दिखाना भी जरूरी है। आज के दौर में हमें चाहिए कि हम अपने स्कूलों में, अपने मदरसों में, बल्कि अगर हो सके तो पूरी कोशिश करें कि हर 15 अगस्त को और हर 26 जनवरी को हम अपनी मसाजिद के सामने भी इंडिया के और भारत के तिरंगे को लहराएं और हम मुसलमानों की मोहब्बत को लोगों के सामने दिखाएं। कोशिश करें इस चीज की, जो मोहब्बत हमारे सीनों में है, इस मोहब्बत को लोगों के सामने ज़ाहिर करें, ताकि लोगों को भी मालूम हो कि यकीनन एक मुसलमान भी वतन से, मुसलमान भी क्या, मुसलमान ही वतन से मोहब्बत करने वाला होता है, मुसलमान वतन से वफादारी करने वाला होता है। एक मुसलमान कभी वतन का गद्दार नहीं हुआ करता, ये मालूम हो सके गैरों को। हाज़रीन, आइए अब हम मुख्तसर तारीख आजादी हिंद को जानते हैं और मुसलमानों का उसमें क्या किरदार था, इसको भी मालूम करने की कोशिश करते हैं। एक वजाहत करना मुनासिब समझता हूं। वो वजाहत ये कि जब कभी गैर जंग आजादी की तारीख लोगों के सामने गिराते हैं तो उस तारीख को शुरू करते हैं कहां से, कौन से साल से शुरू करते हैं? हालांकि जंग आजादी की शुरुआत
हुई असल में 1740 से हुई जंग आजादी की शुरुआत, और लेकिन आज जब तारीख को पेश किया जाता है तो 100 साल के बाद से तारीख को शुरू किया जाता है। कहां से? 1857 ईस्वी से जंग आजादी की शुरुआत को, तारीख को शुरू किया जाता है, और सिर्फ 1857 से जो तारीख है उस तारीख को बयान किया जाता है। 1857 से पहले जो 100 साल की जो तारीख थी उस तारीख को लोगों के सामने बयान नहीं किया जाता। ऐसा क्यों? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि 1740 से लेकर के 1857 तक तकरीबन 100 साल तक मुसलमानों ने ही सिर्फ जंग आजादी लड़ी थी। मुसलमानों ने 100 साल तक जंग आजादी लड़ी थी। वहां पर गैर मुस्लिमों का कोई साथ मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से 100 साल, क्योंकि मुसलमानों ने जंग आजादी इसलिए भी लड़ी थी क्योंकि ये वतन, ये मुल्क हम मुसलमानों से छीना गया था। आपको मालूम होना चाहिए कि जो मुसलमानों ने हमारे हिंदुस्तान पर हुकूमत की वो तकरीबन 600 साल से ज्यादा हुकूमत की। 600 साल से ज्यादा हुकूमत हिंदुस्तान पर हमारे मुसलमानों ने की है, हमारे मुस्लिम नवाबों ने, हमारे मुस्लिम बादशाहों ने की है। और आज एक नारा यह लगाया जाता है कि गैर मुस्लिम खतरे में है, गैर मुस्लिम खतरे में है। मैं उन गैर मुस्लिम भाइयों से यह कहना चाहता हूं, यह समझाना चाहता हूं कि उस वक्त भी गैर मुस्लिम मौजूद थे, जबकि 600 साल जब हमारे मुसलमान हुकूमत कर रहे थे उस वक्त भी गैर मुस्लिम मौजूद थे, लेकिन तब गैर मुस्लिमों को कोई खतरा नहीं था। हालांकि उस वक्त हमारी हुकूमत थी, तब हमने गैर मुस्लिमों के साथ भाईचारगी दिखाई। अब हमारी हुकूमत भी नहीं है तो हम कैसे गैर मुस्लिमों को जो है खतरा पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचाना सकते हैं? ये भाईचारगी हम इस बयान के जरिए से गैर मुस्लिमों को दिखाना चाहते हैं। हाज़रीन, 100 साल की पूरी तारीख को भुला दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि 100 साल पहले की जो आजादी, जंग आजादी जिन्होंने लड़ी वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे। 1857 के बाद गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों का साथ दिया था, उससे पहले नहीं। हाज़रीन, अब आइए तारीख को शुरू करते हैं। 16वीं सदी में मुस्लिम बादशाह हिंदुस्तान में जहांगीर बादशाह थे। 16वीं सदी में उनकी हुकूमत चल रही थी। तब अंग्रेज हिंदुस्तान में कारोबार का बहाना बना करके दाखिल हुए और गुजरात के एक सिटी सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी कायम कर दी। कब? 16वीं सदी में कायम की और कारोबार करने लगे। कारोबार के साथ साथ हिंदुस्तान पर कब्जा करने की नापाक कोशिशें करते रहे। यहां तक कि एक दौर ऐसा आया 1740 ईस्वी तक इन अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के 4 बड़े बड़े स्टेट्स पर कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, जो कि अहले हदीस आलिम दीन थे, मक्का से तालीम हासिल करके फिर हिंदुस्तान लौटे। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के 4 बड़े बड़े सूबों और स्टेट्स पर कब्जा हो चुका है और उनके दिल में यह फिक्र पैदा हुई, यह सोच पैदा हुई कि यह हिंदुस्तान तो हमारा है, यह मुल्क तो हमारा है, लेकिन इन अंग्रेजों का कब्जा इस मुल्क पर क्यों? यह फिक्र थी कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने 1740 ईस्वी के बाद हिंदुस्तानियों के दिलों में जंग आजादी की एक शमा जलाई। जंग आजादी के ताल्लुक से लोगों के सामने बोलने लगे और कहने लगे कि आज इन अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के 4 स्टेट्स पर कब्जा कर लिया है। अगर आज हम बेदार नहीं हुए, अगर आज हमने इन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर न बनाया तो एक वक्त आएगा कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर ये अंग्रेज काबिज हो जाएंगे, और वो वक्त आ भी गया। हाज़रीन, 1740 ईस्वी के बाद फिर उसके बाद 1754 ईस्वी में जो है 4 स्टेट्स पर कब्जा करने के बाद ये अंग्रेज बंगाल गए। वहां पर बंगाल में नवाब अली वर्दी खान वहां के नवाब थे, बड़े थे, सरदार थे। तो उसके बाद जब अंग्रेज वहां पर दाखिल हुए और उन्होंने बंगाल पर कब्जा करने की 4 स्टेट्स के साथ इस पर भी बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश उन्होंने की, तो सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने वाले एक मुस्लिम बादशाह, मुस्लिम सरदार, मुस्लिम नवाब
नवाब अली वर्दी खान थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी, सबसे पहले जंग लड़ी और उन्हें मार भगाया और उन्हें एक कलकत्ता के एक सिटी में हार्बर, डायमंड हार्बर नाम की एक सिटी थी, वहां पर जाकर के उन्हें बसने पर मजबूर कर दिया। कौन? अली वर्दी खान ने। ये मुस्लिम नवाब थे। उसके बाद जो है 1757 ईस्वी में जब नवाब अली वर्दी खान का इंतकाल हुआ तो उनके नवासे नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला वहां पर जो है वहां के नवाब बने। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने बंगाल ही में रह करके मुसलमानों के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जो है साजिशें रचने लगी। जब कारोबार लोगों से करते तो लोगों को उस कारोबार में धोखा देने लगे और लोगों का माल हड़पने लगे और इसी तरीके से बंगाल पर कब्जा करने की फिर से नापाक कोशिशों करने लगी। फिर उसके बाद जब नवाब सिराजुद्दौला को यह बात मालूम हुई कि ये लोग बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ फिर दूसरी जंग लड़ी। जब इन्होंने पहली जंग इनके नाना ने लड़ी, फिर उसके बाद नवासे ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। लेकिन अंग्रेजों ने यह साजिश रची कि अंग्रेज एक तरफ थे, दूसरी तरफ हम मुसलमान थे, नवाब सिराजुद्दौला थे। जब जंग छिड़ी तो जंग के छिड़ने से पहले अंग्रेजों ने मुसलमानों में से जो नवाब सिराजुद्दौला के जो करीबी थे, जो ओहदेदार थे उनकी हुकूमत के, उनके वहां पे नवाबी के हुकूमत के, तो उनको जो है पैसा दिया, लालच दे करके उनको खरीद लिया। जब जंग लड़ी गई तो मीर जाफर, जो कि सबसे बड़ा गद्दार था बंगाल का, मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है साजिश रची। जंग करना था अंग्रेजों के खिलाफ, जंग लड़ी गई नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ। सिराजुद्दौला को कैद कर दिया गया, सिराजुद्दौला हार गए, सिराजुद्दौला को कैद कर दिया गया। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया। उसके बाद मीर जाफर को बंगाल का जो है नवाब बना करके रख दिया। उसके बाद भी मीर जाफर को बंगाल का जो है नवाब बनने के बावजूद भी अंग्रेज जो है कठपुतली की तरह इस मीर जाफर को जो है नचाते रहे। हाज़रीन, उसके बाद जो है हिंदुस्तान की हालत, बंगाल पर जब कब्जा हो गया, हिंदुस्तान की हालत बद से बदतरीन होने लगी। ऐसा माहौल होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये अंग्रेज हिंदुस्तान के पूरे इलाकों, पूरे स्टेट्स पर कब्जा करने लगे। ऐसी हालत हो गई थी लोगों की कि कोई शख्स अपनी मर्जी से किसी एक जगह से दूसरी जगह सफर नहीं कर सकता था, अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ बोल नहीं सकता था। ऐसा माहौल हो गया था कि बाज मकामात पर खून पानी से ज्यादा सस्ता हो गया था और जानें बेकीमत हो गई थी। जब इन अंग्रेजों ने बंगाल को कब्जा करने के बाद दिल्ली पर भी जब कब्जा किया तो उसके बाद ऐसी हालत इन्होंने कर दी कि हजारों लोगों को एक जगह खड़ा करके इन्होंने कत्ल कर दिया। हजारों लोगों को इन्होंने एक जगह खड़ा करके सूलियों पर लटकाना शुरू किया। हजारों लाखों लोगों को इन्होंने, अंग्रेजों ने जो है तोपों से उड़ा दिया। लाखों लोगों के, हजारों लोगों के सीनों को गोलियों से इन्होंने छल्ली करना शुरू कर दिया। अंग्रेज के खिलाफ अगर एक लफ्ज भी कोई बोलता तो गोया कि वो अपनी मौत को दावत देता। ऐसी हालत हो गई थी पूरे हिंदुस्तान की। ऐसे मौके पर एक आजादी की सूरज की किरण जगी कि शहर मैसूर के शेर टीपू सुल्तान जो है कई जंगें इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगे। 3 से 4 जंगें शेर मैसूर यानी टीपू सुल्तान जो है 3 से 4 जंगें 1799 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ जंग जीत भी चुके थे। लेकिन फिर अंग्रेजों ने वही चाल रची जो नवाब सिराजुद्दौला के साथ रची थी। टीपू सुल्तान के करीबी ओहदेदारों को उन्होंने खरीद लिया। उसमें सबसे बड़ा गद्दार जो था वो मीर सादिक था। वहां पर मीर जाफर था, यहां पर मीर सादिक था, सबसे बड़ा गद्दार था। इन लोगों को इन्होंने खरीद लिया और जब जंग लड़ी गई अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के दरमियान, फिर जो है हमारे ही लोगों ने टीपू सुल्तान पर हमला किया और इस तरह से टीपू सुल्तान हार गए और टीपू सुल्तान को कत्ल कर दिया गया। बंगाल में जो सूरत में जो ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी थी, उसका एक फौजी अफसर आता है और जो है टीपू सुल्तान की लाश पर पैर रख करके कहता है कि आज पूरा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आ गया,
हालांकि हिंदुस्तान पूरा का पूरा कब्जा उनके कब्जे में नहीं आया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कब्जे में ऐसा कहा कि पूरा हिंदुस्तान आज हमारे कब्जे में है। इसलिए कहा था कि जब हमने टीपू सुल्तान को हरा दिया है तो दूसरे लोगों को हराना या दूसरे लोगों की आवाज और सांस को बंद करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हादरीन, उसके बाद जो है अंग्रेजों उसके बाद 1831 ईस्वी में 1803 ईस्वी में 1799 से फिर 1803 ईस्वी में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, जो शाह मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी के बड़े बेटे थे, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी आते हैं और आकर के मुसलमानों में सबसे पहले ऐलान करते हैं, सबसे पहले फतवा देते हैं कि ये जो आजादी का मसला है ये दुनिया का मसला नहीं बल्कि ये अब दीन का मसला बना बैठा है। अब पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे मुल्क पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है। अंग्रेज हमें गुलामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिए हैं। दावत और तबलीग का काम करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। एक अल्लाह की इबादत करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। अब हम तमाम मुसलमानों पर यह वाजिब है, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने यह फतवा दिया पूरे मुसलमानों के लिए कि अब हम मुसलमानों के लिए यह फर्ज है, यह वाजिब है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ें। जिस तरह हम पर एक नमाज वाजिब है, इस तरह से हम पर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ना भी वाजिब हो गया है। उसके बाद जो है मुसलमानों के दिलों में जब ये मालूम हो गया कि ये कोई दुनियावी मसला नहीं है, दीनी मसला है, तो उसके बाद से मुसलमानों के दिलों में एक जज्बा, जोश पैदा हुआ। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। 1857 ईस्वी में फिर मुसलमानों के साथ बहुत सारी गद्दारियां हुई। अब शुरू होता है गैर मुस्लिमों का दौर, जब इन्होंने साथ दिया। 1857 ईस्वी में मुसलमानों के साथ कई अखवाम ने गद्दारियां किया। आप अगर जाकर के पढ़ें किताबों में तारीख की तो आपको मालूम होगा कि कई कौमें ऐसी थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों की तोती बोली, जैसा अंग्रेज कहते थे उनके इशारों पर नाचते थे। लेकिन एक मुसलमान ये था कि जो अंग्रेजों के खिलाफ कभी नहीं नाचा। और इसी तरीके से उसके बाद जो है मुसलमानों को कई सजाएं दी गई, हिंदुस्तानियों को कई सजाएं दी। उनमें से एक सजा काले पानी की सजा थी, यानी अंडोमान निकोबार एक जजीरा है, एक आइलैंड है, वहां पर जो है एक जेल है, इतना खतरनाक जेल है कि अनकरीब में या कुछ सालों पहले 2 लोग वहां से भाग करके आए तो उन लोगों पर कहानियां बनने लगी। उसको एक मिरेकल और जादू कहा जाने लगा कि ऐसे जेल से लोग भाग करके आ गए जिस जेल से भागना नामुमकिन है। हादरीन, ऐसे जेल में मुसलमानों को रखा गया। और आपको ये बात भी बता दूं कि काला पानी की सजा पाने वाले लोगों में से 95% मुसलमान थे, 5% गैर मुस्लिम थे। हादरीन, उसके बाद जो है ये कई सारी तहरीकें हुई, तहरीक शहीदैन वगैरह बहुत सारी तहरीकें हुई। फिर हिंदू मुस्लिम दोनों ने साथ दिया, तब जाकर के बहुत सारे हमारे मुसलमानों ने जज्बा दिखाया, गैर मुस्लिमों ने जज्बा दिखाया। तो उसके बाद जो है कई तकरीबन 200 साल की गुलामी के बाद 1947 ईस्वी 15 अगस्त में जो है ये हमारा हिंदुस्तान आजादी की चैन और सुकून की सांस लेने लगा। 1947 ईस्वी 15 अगस्त को। हादरीन, बहुत सारे कुर्बानियां हमारे मुसलमानों ने दी इस्लाम में। मुख्तसर तौर पर गिनाने की कोशिश करता हूं। बहादुर शाह जफर की कुर्बानी को याद करें। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुस्लिम बादशाहों के सबसे आखिरी बादशाह थे। इनके 4 बेटों को इनके सामने रख करके, इनको कैद करके 4 बेटों को इनके सामने अंग्रेजों ने ज़बाह कर दिया था। अल्लाह अकबर। और उसके बाद जो है शाह जफर को भी कैद कर दिया गया एक जेल में। उसके बाद उन्होंने वहीं वफात पाई। और इसी तरीके से हसरत मोहानी उर्दू अदब के एक बड़े शायर हैं, इनको भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की वजह से जेल की सजा दी गई, चक्की पीसने की सजा इन्हें दी गई। और इसी तरीके से इनको जो है अंग्रेज इतना मारा करते थे कि इनका जिस्म फटने लगा, इनके हाथ फटने लगे और खून इनके हाथों से बहुत ज्यादा बहने लगा। ये हम मुसलमानों की कुर्बानियां थी। और इसी तरीके से और भी अगर बात करें तो मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी, ये भी बहुत बड़े मुहद्दिस थे। जैसा कि मैंने शुरू में इनका जिक्र किया, इनको भी जो है सिर्फ इसलिए कि अहले हदीस थे, इसलिए इनको जो है 1 साल तक कैद-ओ-बंद की सजा दी गई। और इन्हें जो है जुल्म और सितम के पहाड़ मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी, जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं, इनको 1 साल तक
बहुत बड़ी सजाएं दी गई। और इसी तरीके से मौलाना सैयद दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह जो कि मुसलमान थे, अहले हदीस आलिम थे, अमृतसर में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बोलने वाले ये सैयद दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह हैं। इनको भी जो है कैद बंद की सजाएं दी गई। आगा हशर काश्मीरी कहते हैं दाऊद गजनवी ने उस वक्त अल्लाह के कलमे को बुलंद किया, उस वक्त आजादी के ताल्लुक से लोगों के सामने बोलना शुरू किया, जबकि आजादी के ताल्लुक से लोगों में बोलने को अगर कोई बोल देता तो उनकी जुबानों को काट दिया जाता था। अगर कोई आजादी के ताल्लुक से बोलता तो उनको कोड़े मारे जाते थे। ऐसे दौर में मौलाना सैयद दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह ने आजादी के ताल्लुक से लोगों के सामने, लोगों के दिलों में आजादी का जोश पैदा किया। और इसी तरीके से अशफाकुल्लाह खान, जिनको सिर्फ ये 27 साल के नौजवान थे, अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की वजह से इनको जो है 27 साल की उम्र में ही फांसी पर लटका दिया गया। और इसी तरीके से अगर हिंदुस्तान की तारीख जिक्र किया जाए, कुर्बानियां जिक्र किया जाए, उलमाए सादिक की कुर्बानियों को जिक्र ना किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उलमाए सादिक पूर्व वो उलमा हैं कि जिन्होंने तकरीबन 100 साल तक जो है अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी है। यह अहले हदीस खानदान था, इनके अंग्रेजों के खिलाफ जो है इन्होंने 100 साल तक जंग लड़ी। और इन पर ऐसा जुल्म सितम किया गया कि एक मरतबा ये ईद मना रहे थे, अंग्रेज जो है बुलडोजर लेकर के आए और पूरे के पूरे सादिकपुर में जितने भी घर थे पूरे के पूरों को घरों को गिरा दिया, पूरे के पूरे घरों को गिरा दिया, इसलिए कि ये लोग अहले हदीस थे और इसलिए कि ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ बोला करते थे, इसलिए इन्हें जो ये सजाएं दी गई। और इसी तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो मशहूर तारीखी जुमला, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं यकीनन हिंदुस्तान की आजादी में बहुत सारे लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अपना हिस्सा डाला, जंगें लड़ी, कोशिशें की, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम की तमाम कुर्बानियों को अगर तराजू के पल्ले में रख दिया जाए और अगर दूसरे पल्ले में अगर उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों को रख दिया जाए तो उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों का पल्ला तमाम की कुर्बानियों से भारी होगा। इतनी ज्यादा कुर्बानियां इन्होंने दी, सजाएं इन्होंने झेली, काला पानी की सजाएं इन्होंने झेली। और इसी तरीके से मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह को भी जो है बहुत सारी सजाएं दी गई। 15 साल तक मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह को जेल में जो है कैद कर दिया गया। मौलाना जाफर थानीसरी और फजल हक खैराबादी, ये मुसलमानों के नाम गिना रहा, मौलाना फजल हक खैराबादी, इनको भी 18 साल तक काले पानी की सजा दी गई। और अगर बात की जाए केरला के मलाबार के मुसलमानों की, जिनको मोपला मुसलमान कहा जाता था, 125 मुसलमान ये थे, अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की वजह से इन्हें जो है एक रेलगाड़ी के एक डब्बे में कैद कर दिया गया। कहा जाता है कि उस रेलगाड़ी के एक डब्बे में उस वक्त सिर्फ 50 लोग मुश्किल से सवार हो सकते थे। ऐसे मौके पर जो है 125 मोपला मुसलमानों को सिर्फ एक डब्बे में कैद करके बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया। केरला से मद्रास ले जाना, इन मुसलमानों को केरला से मद्रास ले जाना था ताकि वहां उनकी सुनवाई हो सके। 3 दिन का सफर, उस वक्त 3 दिन का सफर था, बंद कर दिया गया दरवाजा। न खाने के लिए खाना, न पीने के लिए पानी, न हवा जाने के लिए कोई रास्ता मौजूद है। जब आधे रास्ते के बाद ये दरवाजा खोल दिया गया तो देखा गया कि 65 मुसलमान ऐसे थे जो अपनी जान से हाथ धो बैठे। अल्लाह अकबर। उसके बाद जो बकिया मुसलमान बचे गए थे, मद्रास जाने तक बच गए थे, उनको भी आधे मुसलमानों को जो है सूली पर लटका दिया गया, तो आधे मुसलमानों को काले पानी की सजा दी गई। हादरीन अलगर्ज, इन कुर्बानियों की बदौलत जो है हमारा ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है। और एक आखिरी बात ये कि बहुत सारे गैर मुस्लिमों का या बाज गैर मुस्लिमों का ये एतराज होता है कि तुम मुसलमानों ने हमारे हिंदुस्तान को क्या दिया है। चंद चीजें जिक्र करूंगा। सबसे पहली चीज ये कि जब हिंदुस्तान की आजादी की बात आई तो गांधी जी उस्मान सेठ, जो बेंगलुरु के उस्मान सेठ थे, बड़े ही मालदार और अमीन तरीन इंसानों में से थे, उनके पास गांधी जी गए और उनसे कहा कि आजादी के लिए आप जो है अपना माल खर्च करें। तो उस्मान सेठ ने आजादी के लिए अपने घर बार को बेच दिया था। उस्मान सेठ ने अपनी कई जमीनों को, अपना कई पैसा जो है उस्मान सेठ ने हिंदुस्तान की आजादी के लगा दिया था। और इसी तरीके से अगर बात करें तो मुस्लिम नवाबों और बादशाहों की लातादाद विरासतें आज हिंदुस्तान में मौजूद हैं कि जिसके जरिए से लाखों और करोड़ों रुपया कमाया जा रहा है। किसकी विरासतों से? मुसलमानों की विरासतों से, मुस्लिम बादशाह और नवाबों की विरासतों से। जैसे कि अगर कहा जाए लाल किला, ये बनाने वाले कौन थे? लाल किला बनाने वाले मुसलमान, शाहजहां मुसलमान ही तो थे।
अगर आपको एक न्यूज की बात बताऊं कि पिछले 5 सालों में लाल किले से तकरीबन 18 करोड़ रुपए हिंदुस्तानी हुकूमत ने कमाई। और इसी तरीके से अगर ताजमहल की बात करें तो ताजमहल को बनाने वाले कौन थे? ताजमहल को बनाने वाले भी शाहजहां थे। और अगर बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया की जो न्यूज है, इंग्लिश न्यूज जो आती है, उसके मुताबिक बात करें तो पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान की हुकूमत ने सिर्फ ताजमहल की टिकट बेच करके 297 करोड़, कितने? 297 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की हुकूमत ने कमाए हैं ताजमहल की टिकट बेच करके। और इसी तरीके से कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार बनाने वाले कौन थे? कुतुब मीनार बनाने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक मुसलमान ही थे। कुतुब मीनार से पिछले 5 सालों में ये तमाम की तमाम चीजें मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि न्यूज पढ़ करके बात कर रहा हूं। जैसे कि मैंने हवाला दिया कि टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज, इसी तरीके से ये कुतुब मीनार से पिछले 5 सालों में जो रकम कमाई गई है टिकट के जरिए से, वो 29 करोड़ बनती है। हाजरीन, इस तरह की कमाई जा रही है। और इसी तरीके से चार मीनार की बात करें, और इसी तरीके से बीजापुर के गोल गुंबज की बात करें, ऐसे कई तारीखी जगह हैं जहां से जो मुसलमानों की है, और उनसे करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो है हिंदुस्तान की हुकूमत कमा रही है। और आज का ये नादान कहता है कि तुम मुसलमानों ने हमारे हिंदुस्तान को क्या दिया। हम मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया। हम मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान के लिए अपनी गर्दनों को सूलियों पर लटकाया। हम मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान के लिए 18 साल तक, 25 साल तक काले पानी की सजा झेली। हम मुसलमानों ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी हिंदुस्तान के लिए काला पानी जैसे खतरनाक जेल में कैदो बंद की सौबतों और मशक्कतों को झेला है। हाजरीन, ये कुर्बानियां थी मुसलमानों की, जानी और माली कुर्बानियां हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। हाजरीन, और भी चंद पैगामात थे कि एक मुसलमान जो आज के दौर का है, ये मुसलमान इन चीजों से क्या नसीहत हासिल करे। पहली नसीहत यह है कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम तारीख पढ़ें, पढ़वाएं, अपने बच्चों को सुनवाएं। वरना अगर हम तारीख नहीं पढ़ेंगे तो याद रखें हमारी दास्तान भी नहीं होगी दास्तानों में आगे जाकर के। और इसी तरीके से न समझोगे, अल्लामा इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। और इसी तरीके से वफादारी को अपनाएं, हर हमेशा वफादारी करें, कभी किसी के साथ धोखा ना करें, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो। क्योंकि अगर हम तारीख हमने जब देखी तो मालूम हुआ कि जहां पर हजारों करोड़ों मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने हिंदुस्तान की वफादारी दिखाते हुए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, वहां पर इक्का दुक्का मुसलमान ऐसे भी थे जिन्होंने अपनों ही के साथ गद्दारी की। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है, मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे, जो बेवफाई करे, जो गद्दारी करे, वो हम मुसलमानों में से हो ही नहीं सकता। ऐसा शख्स हम मुसलमानों में से हो ही नहीं सकता। और तीसरी जिम्मेदारी यह है कि हम जो है जिस तरह सलफ ने इस हिंदुस्तान को निखारा है, संवारा है, बनाने की कोशिश की, हम भी इस हिंदुस्तान को बनाने, संवारने, निखारने की कोशिश करें। एक चौथा पैगाम यह है कि हर वो काम अंजाम दें जिससे मुसलमानों की नेक नामी लोगों में होती हो। ऐसा कोई काम हम करने की कोशिश ना करें कि जिसके चितापुर में कई वाकयात हमने देखे होंगे कि बाज़ मुसलमान ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से पूरे के पूरे मुसलमानों का नाम बर्बाद होता है। ऐसा कोई काम ना करें कि जिसकी वजह से मुसलमानों का नाम बर्बाद हो। और इसी तरीके से हर किसी के साथ अच्छा सलूक करें, चाहे गैरों के साथ हो, अपनों के साथ हो, और लोगों तक यह पैगाम पहुंचाएं कि एक मुसलमान गद्दार नहीं हो सकता, एक मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता। क्योंकि जिस मुसलमान का इस्लाम ये कहता है, मन खतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन व फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा क़तल नास दुनिया, कि अगर कोई शख्स एक इंसान को भी कत्ल कर दे, पूरी इंसानियत को कत्ल करने की सजा उसके गले पर डाल जाती है। एक इंसान कैसे दहशतगर्द हो सकता है। और ये पैगाम पहुंचाए लोगों तक कि जो मुसलमान, जो इस्लाम एक इंसान को, एक मुसलमान को रास्ते में तकलीफ दे चीज उठाने पर भी सदक़े का सवाब सुनाता है, ऐसा मुसलमान किसी को कैसे छुरा भोग सकता है। एक इंसान, एक इस्लाम, एक मुसलमान को ये तालीम दी जाती है कि अगर कोई शख्स किसी इंसान को, तो इंसान गैर जानदार जो जानवर होते हैं उनको भी पानी पिलाने पर, जब एक इस्लाम जो है जब मुसलमानों को जन्नत की बशारत सुना देता है, बिल्ली को, कुत्ते को पानी पिलाने पर भी जन्नत की बशारत सुनाता है, ऐसा इस्लाम और ऐसा मुसलमान लोगों को दहशतगर्दी की तालीम कैसे दे सकता है। ये कुछ पैगामात थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को, जो शरीर लोग हैं, जो फितने बाज लोग हैं,
फितना परवर लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे फितना परवर लोगों की फितनों से हमें महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला हर हमेशा हमारे इस मुल्क में अमन व शांति तू बरकरार रखे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों की तो हिफाजत फरमाए, जालिमों से, जाबिरों से अल्लाह तबारक व तआला तू हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को जो है तू जहां भी रख, आबाद रख, शादाब रख, खुश व खुर्रम रख। अल्लाह तबारक व तआला जो भी मुसलमान परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो कर्जदार हैं तो उनके कर्जों को दूर कर दे। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की मुसीबतों और परेशानियों को दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।